When I have executed this code, यहाँ पर रिजल्ट इस फॉर्म में शो किया। इफ आई डोंट वांट टू शो द कॉमास, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिकॉज here the information is in the form of list. You can see कि the entire information is enclosed in the square bracket. तो आपको अगर लिस्ट में अगर डिस्प्ले करना है, then you have to specify the index value also. When you will specify the index value, then it will not show the comma at the time of displaying the values to you. क्या किया? क्लियर है? यहाँ पर अगर now if you want to put a space because it is not showing the things in the proper tabular format, अगर आपने show करना है, then you can use the escape sequences, then it will show the things in the proper. I'm just closing the things and then executed it again. Clear to you? In this way we can store the things. Now please note down the code for this. यहाँ पर आई एम जस्ट मूविंग बैक टू द, इसको कमेंट बना देते हैं। Question is how we can read the CSV file. CSV file content. If you will use this thing, then obviously it will show the content in the comma form the way it is stored in the actual file. CSV module is the inbuilt module at that when we install the Python, at that time it automatically installed in here. That is why I told you at that time just click on the add path option. Now let's execute the things यहाँ पर, because here I am displaying the information. यहाँ पर in this way, when you will execute this command, then it will show your things in this way. I have imported the CSV module and use the CSV reader, and this reader is used to display the information of CSV file when the records list. CSV reader is used to read the records when they are in the form of list, and we will discuss dict reader if we want to read the information in the form of dictionary later on. मैम Yes, Prakash. मैम जो ये कमेंट बनाया है आपने, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाना। तो फिर मैं इसको कमेंट बनाते हैं और इसको हटा देते हैं। क्लियर? I've used the escape sequence also because अगर मैं ये यूज नहीं करती हूँ, if I'm removing this escape sequence, you can see. हाँ, आपने ये CSV डॉट रीडर के सामने ये कमेंट क्यों डाली है, मतलब समझ नहीं आया So कमेंट। that you can easily understand कि why we are using CSV reader here, because this command is used to read the records information if they are in the form of list. You can easily find out कि here all the records are in the form of list because the information is enclosed in the form of square bracket. Square bracket में enclosed है ना बेटा, तो दैट मीन्स ये चीज़ें किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है। जब लिस्ट की फॉर्म में आपकी CSV में इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसके लिए हम CSV रीडर यूज़ करते हैं। दो ही फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एक लिस्ट की फॉर्म में और डिक्शनरी की फॉर्म में, क्योंकि लिस्ट की फॉर्म में भी हम चेंजेस कर सकते हैं और डिक्शनरी की फॉर्म में भी वी कैन डू द चेंजेस। दैट इज़ वाई दीज टू थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेबल डाटा टाइप्स। किया था ना हमने पहले,
म्यूटेबल का मतलब जहाँ पर हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटेबल की कैटेगरी में है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी सिर्फ हम लिस्ट पे फोकस कर रहे हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि अगर इफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, देन हाउ वी कैन रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट ऑल्सो। अब here for the time being I have not created any CSV फाइल। मैंने CSV फाइल नहीं क्रिएट किया है। मैंने उसके लिए क्या किया था, I just opened a Excel environment, और उस Excel environment में मैंने एक फाइल क्रिएट किया, और फाइल जो क्रिएटेड था और उसको I have saved with the, ये वाली फाइल थी यहाँ पर, I have saved this file with the CSV extension, nothing else, automatically it will save the things। यहाँ पर आपने देखा होगा CSV कॉमा डिलिमिटेड के फॉर्म में आई सेव द फाइल, तो सेव कर लिया, एंड आफ्टर दैट आप इस चीज़ को यू कैन ओपन दैट एनवायरनमेंट। आई टोल्ड यू ऑल्सो आप हाउ यू सिर्फ एक्सेल से ही सेव कर सकते हैं या फिर किसी भी वर्ड पैड किसी से भी सेव कर सकते हैं CSV फाइल? CSV फाइल को आप क्रिएट करके यू कैन ओपन दैट फाइल इन एनी अदर एप्लीकेशन। मेन चीज़ है, अभी तो मैंने सिर्फ एक्सेल में बताया भी था कि CSV फाइल नॉर्मली क्रिएट होती है, और हम यहाँ पर जनरली बट नेसेसरली क्रिएटेड यूजिंग एक्सेल, पर हम खुद भी अपनी पाइथन की फॉर्म में हम CSV फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पर उसका एडवांटेज क्या है कि आप जब व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ CSV फाइल, यू कैन ओपन दैट CSV फाइल इन एनी अदर एप्लीकेशन, कहीं पे भी उसको ओपन कर सकते हो। ये इसकी फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। CSV फाइल हम खुद भी क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग द लिस्ट कॉन्सेप्ट, हम खुद भी कर रहे हैं, पर उसमें अब जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, कि आपकी पहली कि CSV फाइल जो आपकी क्रिएट कर रहे हो वो किसी भी एप्लीकेशन में आपकी ओपन हो जाएंगी, नोटपैड में, वर्ड पैड में, एक्सेल में, आप कहीं पे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू कैन ओपन दैट CSV फाइल, चलेगी, सब में वर्क करती है। और दूसरा, जब आप व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन CSV फाइल तो उसका हेडर देना ज़रूरी है। चेक करें यहाँ पर देखो कि फर्स्ट जो भी इसमें रिकॉर्ड आता है वो ऑटोमेटिकली कॉलम की हेडिंग बन जाता है। तो यही आपको बताया था, अभी लिखा था आपने कि इसमें जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड की हेडिंग होता है। यहाँ पर हाँ था, द फर्स्ट रिकॉर्ड इज द टाइटल ऑफ ईच कॉलम। फील्ड का मतलब होता है कॉलम, तो इसमें जो फर्स्ट रिकॉर्ड रहेगा वो हमेशा आपका टाइटल रहेगा, यानी कि किसके बेसिस पे आपकी चीज़ें हैं, तो ये आपकी हेडिंग रहेगी ऑटोमेटिकली। जब आप खुद क्रिएट करेंगे तब भी हम यही चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्रिएशन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए मुझे था कि आज सिर्फ आपको रीडिंग करवा देती हूँ, और एक्सेल में कैसे क्रिएट होती है फाइल वो भी, इवन योर जो एक्सेल फाइल जो हम क्रिएट करते हैं वो भी आपको अब आज वो बताते हैं। जैसे आपका अटेंडेंस लेते हैं और उसी का हम यूज़ करते हैं। 58 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, इनका मैंने अटेंडेंस लिया। अब ये अटेंडेंस जाकर आपका स्टोर होता है, कहाँ होता है, डाउनलोड में आपका स्टोर होता है। यहाँ पर डाउनलोड पे गए, यहाँ पर तुम्हारी अटेंडेंस था 929 पे, टेकन योर अटेंडेंस, इसको ओपन किया। अब मैंने जो यहाँ पर आपकी फाइल्स थी, ये इसको जब मैं इसको मिनिमाइज़ करते हैं आपको यहाँ पर इसके एक्सटेंशन दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर देखो ये CSV फाइल में सेव्ड है, क्लियर है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब मैं इस फाइल को यहाँ पर आपकी फाइल को, यही वाली फाइल को मैंने एक्सेल में भी ओपन किया, इफ आई ट्राई टू ओपन इन द नोटपैड ऑल्सो, वो आपका वहाँ पे भी ओपन होगा, क्लियर है। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिस यूज़ किए हैं टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। आप उसमें कॉमास भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट आपका कॉमा में आपका होता है, यहाँ पर इसने स्पेसिस के फॉर्म में सेव हुआ है। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, इवन ऑल द जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी CSV फाइल में स्टोर करती हैं। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन, क्योंकि यू नेवर नो कि जिस पर्सन को आप फॉरवर्ड कर रहे हो उसके पास वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है भी उसके कंप्यूटर में या उसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें, तो ये वाली जो एप्लीकेशन होती है वी कैन ओपन इन एनी अदर एनवायरनमेंट। आपको ये बताया था यहाँ पर CSV फाइल कैन नॉट बी एक्सेस्ड। नॉर्मली CSV फाइल आपका सब सारे वर्ड प्रोसेसिंग में वर्क करती है। ये सारी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, मे बी फॉर अदर पर्पस। चेक करते हैं हम दूसरी एप्लीकेशंस में।
वर्ड पे देखते उसमें लिख कर क्या लिखो प्लीज इसका टर्न ऑफ योर माइक पढ़ा तुमने उसमें लिखा टर्न इट ऑफ व्हाई व्हाट यू पीपल आर डूइंग ये देखो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपका डिस्प्ले करेगा इन द टेबुलर फॉर्मेट क्लियर है कि आपका यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको रीड ओनली की फॉर्म में ओपन किया है तो आपकी CSV फाइल यू कैन ओपन इन एनी एनवायरनमेंट और वो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा एडवांटेज ताकि ये चीज़ें आपकी कहीं पे भी ओपन हो सके प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखाया है ये आपका CSV एक्सटेंशन है तो आप एक्सेल में खोलो एक्सेल में ओपन होगी वर्ड में खोलना है वर्ड में खोलो वर्ड नोटपैड में खोलना है नोटपैड में खोलो तो इसका एडवांटेज यही है वी कैन यूज दिस फाइल एंड टू ओपन एंड वी कैन ओपन दिस फाइल इन एनी अदर एप्लीकेशन ऑल्सो and it will work properly and through Python also we can read the content also in the previous next class we will discuss how we can do the things दिवांशु अपना माइक ऑफ क्यों नहीं करते हो बेटा